Hello students, in previous video I have explained you about the human circulatory system which is composed of heart, blood and blood vessels. Okay, now one more circulatory fluid is flowing in the body, that is lymph. Another fluid which is flowing in the body, that is known as lymph. It is also known as tissue fluid. Lymph is similar to blood but RBCs are absent in lymph. लिम्फ ब्लड जैसा ही होता है लेकिन लिम्फ के अंदर आरबीसीज एब्सेंट होती हैं. Lymph is formed from the fluid which leaks from blood capillaries and goes to the intercellular spaces in the tissues. Lymph blood से ही बनता है. ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड होता है वो ब्लड कैपिलरीज में से निकलकर टिश्यू गैप के बीच में, सेल्स के गैप के बीच में आ जाता है. ठीक है, and that fluid is collected from lymph vessels and finally return to the blood capillaries. और वो जो टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज में से निकल के आ गया है वो फ्लूइड वापस ही लिम्फ वेसल में कलेक्ट होता है और अल्टीमेटली वो ब्लड कैपिलरीज में जाके मिक्स हो जाता है. लिम्फ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम. लिम्फ का इम्पॉर्टेंट काम है हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल का, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल. इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम विच इज able to fight against the infection. Lymph yellowish fluid escape from blood capillaries into the intracellular spaces containing less proteins than blood. जैसा मैंने बताया लिम्फ ब्लड से ही बनता है, ब्लड कैपिलरी से ही फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर आरबीसीज नहीं होते हैं और प्रोटीन्स का अमाउंट भी लेस होता है एज कम्पेयर टू द ब्लड. सो लिम्फ का कलर होता है येलो कलर का. Lymph flows from tissues to heart, assisting in fat transportation and destroying germs. जैसे कि बताया कि all the substances are transporting through the blood, लेकिन lymph के थ्रू फैट का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और इसके अलावा lymph हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इट इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम. सो एक्चुअली इट इज protecting our body from the germs. So it destroys the germs, it fighting against the infection. It means it kills the germs which are entered in the body. Now in the human beings, double circulation is found. Double circulation is transport of blood twice in one cardiac cycle. So in the human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. हमारी बॉडी में जो हार्ट में ब्लड 2 बार पास होता है एक कंप्लीट हार्ट बीट के अंदर, एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल के अंदर. This type of circulation is called double circulation. It means whenever the blood is travels to the heart twice, 2 times, then it is known as double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once in is called cardiac cycle. जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं कि एक बार हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. तो इस कंप्लीट वन कॉन्ट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन को मिला के वी कॉल इट कार्डियक साइकिल और वी कैन से इट इज हार्ट बीट. वन हार्ट बीट मीन्स वन कार्डियक साइकिल इन विच contraction and relaxation, one time contraction and relaxation is taking place. The heartbeat about 72 times per minute in a normal adult. नॉर्मल एडल्ट में हमारा जो हार्ट बीट है पर मिनट 72 टाइम्स, इट इज द कैलकुलेशन. तो हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट के बाद में 72 टाइम मिनट्स हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स. In one cardiac cycle, the heart pumps about 70 ml blood and thus 72 times per minute. तो हम कह सकते हैं 72 कार्डिक साइकिल इज टेकिंग प्लेस और एक कार्डिक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड पंप होता है. तो 72 में कितना हो जाएगा 4900. तो इन 1 मिनट द ब्लड इज पम्प्ड, दैट अमाउंट इज 4900. ठीक है, 4900 ml ब्लड एक कार्डिक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड होगा. ठीक है, तो ऐसे हमारे एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स कार्डिक साइकिल है. तो एक मिनट के अंदर 4900 ml blood is pumped. Double circulation ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals. This is the figure. Last video में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बताया था कि what happens in our body. There are 4 in our heart. There are 4 chambers. Okay, and on the right side deoxygenated blood flows and on the
left side oxygenated blood flows. Now these blood never mix together. चारों चैम्बर से उनका ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होगा, और ऐसा होना जरूरी है क्योंकि आर बॉडी वी आर मोर एनर्जेटिक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, बर्ड्स, दे आर द मोर एनर्जेटिक एनिमल्स. हमें ज़्यादा एनर्जी, हमारी ज़्यादा ऑक्सीजन की, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी देयर सो दैट आवर चैम्बर्स आर टोटली सेपरेटेड. उनका ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता. कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन में आता है. ठीक है, क्यों क्यों सेग्रीगेशन रहता है? फॉर इट इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो प्रॉपर अमाउंट में, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी फॉर टू डू वर्क. एक दे रखा है इसमें डायग्राम. ठीक है, जो मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, बीच में क्या है, इट इज द हार्ट एंड इधर लंग्स एंड दे आर द बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, हमने बताया था कि पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ब्लड टू द लंग्स. ठीक है, वो हमने चैम्बर्स का एक्सप्लेन कर चुके पहले. फिर लंग्स से एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा ब्लड? बॉडी पार्ट्स में, यानी बॉडी ऑर्गन्स में. बॉडी ऑर्गन से लार्जेस्ट वेन जो होती है वेना केवा, उसमें ब्लड आएगा, फिर वापस वो हार्ट में जाएगा, और फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा. तो हम यहाँ देखते हैं, चाहे ब्लड प्योर हो या इम्प्योर हो, दोनों बार वो हार्ट में आ रहा है. तो दिस इज द डबल सर्कुलेशन. प्योर होगा तो अभी हार्ट के थ्रू पंप होता है, इम्प्योर होगा तो अभी हार्ट के थ्रू पंप होगा. तो ब्लड इज ट्रेवलिंग ट्वाइस टू द हार्ट, सो इट इज डबल सर्कुलेशन. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हार्ट बीट यानी कार्डियक साइकिल. तो हम कह सकते हैं हार्ट बीट में क्या है? कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. वन टाइम कॉन्ट्रेक्शन और वन टाइम रिलैक्सेशन, तो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं हार्ट बीट. ओके, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल. जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, तो जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय मैक्सिमम प्रेशर होता है, तो वो उसका मेजरमेंट होता है 120 mmHg. डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है? एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. इस समय मिनिमम प्रेशर होता है और वो होता है 80 mmHg. एक नॉर्मल पर्सन में जब कभी हम ब्लड प्रेशर मेजर करवाने जाते हैं तो ये नॉर्मल होता है 120/80 करके डॉक्टर्स कई बार लिखते हैं. तो 120 से हम कह सकते हैं 135 140 तक, 135 तक नॉर्मल मान सकते हैं. 80 में भी हम जैसे कह सकते हैं 70, लेकिन इससे ज़्यादा जब बिल हो जाता है तो हम कह सकते हैं 140 से ऊपर या 135 से ऊपर हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो जाती है. 70 से बिलो हो गया तो हम कह सकते हैं लो ब्लड प्रेशर. थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू यदि कम हो जाएगी तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और ज़्यादा 135 से ऊपर आ गया तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, तो इन दिस वे द ट्रांसपोर्टेशन इज टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स. ओके बेटा, एक हमने बताया था कि ब्लड की 3 सेल्स होती हैं, कि हम ब्लड हैज़ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में 3 टाइप्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग, कि हमारे जो कभी हमारे इंजरी हो जाती है तो वो ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी हमें इंजरी हो जाती है, कभी कट हो जाता है, तो क्या होता है, प्लेटलेट उस कट के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेती हैं. उन लीकेज जो हो जाते हैं, किसी भी वेसल के अंदर लीक होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो उन लीकेज के चारों तरफ उसको प्लग कर देती हैं. जैसे स्विच में प्लग लग जाता है, स्विच बंद हो गया, तो हम कह सकते हैं उन लीकेजेस को प्लग कर देती हैं, वहाँ कलेक्ट हो जाती हैं प्लेटलेट्स, और उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो इट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, जो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ we have studied the transportation in human beings. Now transportation in plants, it is another topic in the transportation which is taking place in the plants. And in the previous class we have studied, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर भी, कि plants have specialized vascular tissue for transportation of substances. plants के अंदर जो transportation होता है तो उनमें specific vascular tissues होते हैं, और कैसे conducting tissue होते हैं. There are 2 types of vascular tissues in plants, और plants में 2 तरह के vascular tissue होते हैं, which are known as conducting tissue और you can say transporting tissue. First is xylem and second is phloem. Xylem जो है, xylem is responsible for transportation of water and mineral. xylem के through water और minerals का transportation होता है. And xylem is composed of, xylem के अंदर 4 cells हैं, और कैसे 4 elements हैं xylem के, 4 constituents हैं xylem के.
tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Tracheids and xylem vessels are the conducting elements. Mainly जो transportation होता है, it is taking place by the tracheids and xylem vessels. The xylem makes a continuous tube in plants which run from root to stem and right up to the veins of leaves. जैसे पाइप से पाइप कनेक्ट होते हैं, इसी तरह से रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्ट होगा, स्टेम का जाइलम लीव्स के जाइलम से कनेक्ट होगा. तो कंटिन्यूस चैनल्स बन जाते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब सिस्टम बन जाता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स. And in this way the transportation is taking place from the roots to upper part of the plant. हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल बी यूनिडायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कभी भी बैकवर्ड नहीं जाएगा. इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली. Okay, it will not move in up downward, it will move in upward. So we can say it is the unidirectional transport of water and minerals. Carry water and minerals from leaves to other parts of the body. Okay, so here we cannot say the carry water and minerals from the roots. Okay, roots, leaves से तो नहीं होगा, तो it will take place from the roots. The roots absorb water from the soil, minerals are also absorbed. Then from the roots, the water and minerals are transported to other parts of the plant. Phloem. Phloem is responsible for transportation of food. Another जो दूसरा vascular tissue है जिसको हम बोलते हैं phloem. Phloem is transport the food substance से, ये transportation of food के लिए responsible है. Phloem is composed of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers या bast fibers भी कह सकते हैं. ठीक है, इसमें भी 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, or you can say bast fibers. Sieve tubes are the conducting element in phloem. Basically इसमें जो sieve tubes के थ्रू का ट्रांसपोर्टेशन होता है with the help of companion cells. Carries product of photosynthesis from leaves to other parts of the body. ये क्या करता है, product of photosynthesis मतलब क्या है, food, because the food is forming in the leaves. Leaves are the food factory of the plant. ठीक है, लीव्स के अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है. सो इट कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फूड हो गया. ठीक है, वी कैन कॉल दिस फूड. इट इज फूड. ओके, so food is prepared in the leaves. So transportation of food is taking place from leaves to other parts of the plant, and this food is reaching in all the direction of the plants. हम कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल, हम कह सकते हैं उसको बाय डायरेक्शनल. अपवर्ड मूवमेंट भी होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट भी. मल्टी डायरेक्शनल भी हम इसको हायर क्लासेस में मेजर करते हैं क्योंकि सभी साइड्स में भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा फूड. सो वी कैन से इट इज मल्टी डायरेक्शनल. So we can say that transportation in plants is taking place by the xylem and phloem. Okay. Now next term is ascent of sap. देखिए कि the upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is known as ascent of sap. ठीक है, इसका एक अलग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एसेंट ऑफ सैप नाम भी दे दिया है कि वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होगा, कहाँ से, रूट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में, तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. Many factors are at play in ascent of sap and it takes place in many steps. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कई स्टेप्स में होता है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट इज रूट प्रेशर. रूट प्रेशर विच इज क्रिएटिंग इन द रूट. रूट प्रेशर से थ्रू क्या होता है, द वॉल ऑफ सेल ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन. ठीक है, जो रूट हेयर्स होते हैं रूट्स के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से. तो जो रूट हेयर्स की जो सेल्स की वॉल है दे आर वेरी थिन and water from soil enters the root hairs because of osmosis. जो soil में water होगा वो root hairs absorb करेंगी. The process is known as osmosis. Osmosis is the movement of water from high concentration to low concentration. Osmosis क्या, it is a type of diffusion. Diffusion में सारे substances का movement होता है from high to low concentration. But in the osmosis specifically, water is moved from high concentration to low concentration. Root pressure is responsible for movement of water up to the base of the stem. तो इसकी वजह से roots में pressure create हो जाता है. ठीक है, तो and this because of that pressure water अपने आप ही क्या है, stem की तरफ pull हो जाता है.
Next is capillary action. A very fine tube is called capillary. Water or any liquid rises in the capillary because of physical forces and this phenomenon is called capillary action. यानी स्टेम में आगे जैसे ट्यूब्स में जो हम कह सकते हैं कि एक फाइन ट्यूब जो कह सकते हैं सारे जाइलम है स्टेम के, कैपिलरी को हम इसको एक नाम दे सकते हैं। इस कैपिलरी में क्या है, वाटर और लिक्विड क्या है, जैसे पाइप में कोई डालते हैं तो पाइप के अंदर वो उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। तो वाटर और लिक्विड का राइजेज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्स, तो नीचे रूट प्रेशर की वजह से वो जो कैपिलरी के अंदर वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगता है एंड दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। यानी ट्यूब में एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा। वाटर इन स्टेम राइजेस अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ दैट कैपिलरी एक्शन। तो उन ट्यूब्स के अंदर ऐसा फोर्स क्रिएट होने की वजह से वाटर हाइट में यानी ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। एडिशन कोएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, water molecules make a continuous column in the xylem because of forces of addition cohesion among the molecules। ठीक है, एक तो कैपिलरी का एक्शन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का खुद का भी अपना एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एडिशन एंड कोहेशन। इसका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो उसको इतना ही कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या है, जालम के अंदर कंटिन्यूस कॉलम बना लेते हैं, चैनल्स कॉलम के जैसे एक कॉलम बन गया फिर वो ऊपर पुश हो गया, नीचे वाला कॉलम फिर और ऊपर पुश हो गया, जैसे कॉलम से कॉलम बन जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 वाला ऊपर हो गया फिर 2 वाला ऊपर हो गया फिर 3 वाला ऊपर हो गया। तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं एडिशन एंड कोहेशन। ट्रांसपिरेशन पूल, इसके अलावा वन मोर थिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन टर्म हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर vapors through stomata, की loss of water in the form of water vapors by the stomata and lenticels। lenticels क्या होते हैं, they are the pores which are found in the stem and stomata में जो stomata होता है they are also tiny pores but they are found in the leaves and lenticels they are the pores which are found in the stem। so lenticel और stomata के through water is lost in the form of water vapor, it is known as transpiration। ट्रांसपिरेशन बेसिकली हम स्टोमेटा का ही इसमें कंसिडर करते हैं। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स वैक्यूम विच क्रिएट्स ए सक्शन। तो जैसे लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है तो स्टोमेटा से वाटर यानी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया तो उसकी वजह से पुल क्रिएट हो जाता है, सक्शन बन जाता है कि वाटर वहां पहुंचा और वाटर वेपर के फॉर्म में वो बाहर एक्सेस ऑफ वाटर विल रिलीज। ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी का वाटर नहीं जाए, एक्सेस ऑफ वाटर विल बी रिलीज, तो उसकी वजह से पुल बन जाता है, फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द water columns from xylem tubes and thus water is able to rise to great height in even the tallest plant। तो वो वाटर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और एक सक्शन एक फोर्स क्रिएट हो जाता है तो नीचे जो वाटर है जो स्टेम के में है तो वो अपने आप धीरे धीरे लीव्स की तरफ खींचने लगता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, जाइलम ट्यूब्स और इनसे वाटर को एकदम सक करने लगता है एंड वाटर इज एबल टू राइज टू ग्रेट हाइट। और हम कह सकते हैं कितने बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, बहुत 300 350 मीटर्स हाइट होती है कई प्लांट्स की। तो ठीक है, तो इतने टॉलेस्ट ट्री तक ऊपर लेवल तक वो सारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर हो गया, कैपिलरी एक्शन हो गया, एडिशन कोएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया एंड ट्रांसपिरेशन। तो दीज फोर points are these four things are necessary for the transportation of water and minerals। नेक्स्ट है फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस बाय द फ्लोएम। सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फूड से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब तक फूड नहीं पहुंचेगा सेल्स के अंदर तो एनर्जी का कैसे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, दस अनलाइक द ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा दो टर्म होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो होता है सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कभी क्या होता है, लो टू हाई। ठीक है, तो मोर ओवर द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं दोनों डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको मल्टी डायरेक्शन बताया लेकिन अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में टू वे हो गया, जैसे अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज
वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये वही रिपीट हो गया। तो ट्रांसपिरेशन में क्या यूज हो गया, ट्रांसपिरेशन के एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है, एक इवेपोरेशन जनरेट होता है, तो कूलिंग भी प्रोवाइड होती है। इवेपोरेट होता है ना वाटर, तो उस एरिया में जहाँ पर वाटर वेपर रिलीज हो रहा है तो कूलिंग इज ऑल्सो देयर। फंक्शंस एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पोल हेल्प्स ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के फंक्शन लिखे हुए कि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पोल। ट्रांसपिरेशन पोल बन जाता है ना, उसकी वजह से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम द रूट और अपवर्ड उनका मूवमेंट होगा रूट्स के ऊपर वाले एरिया में, स्टेम में, लीव्स में। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। ठीक है, इसके अलावा ये टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। फंक्शंस किसके, ये ट्रांसपिरेशन के फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, एक ये वन मोर डेफिनेशन इज देयर, ट्रांसलोकेशन भी कई बार एग्जाम आता है कि जब स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जब केवल फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. So beta, this live process transportation is finished. In the next video I will explain about the excretion.